And Dale Carnegie, the foundation, and the Harvard University did a research, and it found that 65% or 70% of the Americans are having glossophobia. Try to speak your heart out. Whatever you have in your mind, believe that you can speak. How are you? How are you doing? The most important part in public speaking, persuasion. किसी को अपनी तरफ खींच लेना. Whenever we speak, जब हम बोलते हैं, तो मीडियम और लिसनर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. सबसे पहली बात, How is your family going? How are you actually? So फ्लैट टंग कभी भी ना यूज करें. अनजाने हो जो तुम, बेगाने हो जो तुम, पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए. अब ये फ्लैट टोन है. अनजाने हो जो तुम, बेगाने हो जो तुम, पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों. ये फ्लैट टोन नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस फेस. आप 20 महीने की ट्रेनिंग ले लो, आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि मुझे डर लगता है. वो बैठा हुआ है, इसको निकालने में 1 मिनट में निकल सकता है और 20 साल लग सकते हैं. आई स्टूड फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज टू टीच. माई लेग्स वर लाइक ढिक नोरा फतेही. राइट आफ्टर दैट नाउ यू कैन सी दैट इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू मी. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टंग. और आपकी टंग कैसी है? चिली. Today we have a public speaking session. In this public speaking, when we talk about, so the biggest failure and the biggest reason of this public speaking and the weak public speaking is the comfort zone. We are not able to, and we are not ready to step out of comfort zone. For example, why can I and how can I speak in that louder tone? Because I have never spoken in my life. My mother has never taught me to speak in louder voice. I can't speak actually this time. That's my comfort zone. And what is my comfort zone? Actually, whenever I stand on the stage, I cannot speak. I just can't do conversation with others. I can talk to my friends. I can talk to the people, but I cannot speak on the stage. But this is my comfort zone, that I can talk to my friends. So there are comfort zones in life. There are comfort zones in life. For example, you talk to each other when you sit as a backbencher in the class. But the moment you come on the stage, everything is gone. Why? You will never be appreciated for whispering, for talking, for doing gossips. You will never be complimented, right? Have you ever seen that any wife of any husband has been complimented for making a good roti and a good chapati? No. That is why it is said that domestic work is like a domestic violence. Domestic work is always not paid. The ladies who work in the domestic, in the work, in the home, are they ever paid? They are never paid. Are they ever complimented? They are never complimented. Are they ever praised? They are never praised. The women who just comes and talks about the same roti, even she does not make the roti. She talks about the roti. She starts a business of the roti. She talks about the entrepreneurship of our roti, of a chawal. She is complimented and praised more. बनाने वाली उतनी तारीफ नहीं होती है, लेकिन उसको बेचने वाली की तारीफ होती है. ये है भारत और ये है दुनिया. So that is why, इसलिए कोई भी दुनिया की औरत है, कोई भी लड़की है, अगर उसको लगता है नहीं मैं आई वांट टू बी हाउस वाइफ, मैं बहुत अच्छी जिंदगी है, आपकी कभी तारीफ नहीं होगी इस जहान में. कभी भी तारीफ नहीं हो सकती. आप कितना भी स्वादिष्ट खाना बना दो, लोग खा के उंगली चाट के चले जाएंगे और आपकी तारीफ करने वाले नहीं है. थोड़ा सा तारीफ कर दी. इसलिए नेवर बी अ हाउस वाइफ. कभी भी एक हाउस वाइफ मत बनो अपनी लाइफ में. राइट? बी नॉट अ वाइफ, बट बी अ स्ट्रॉन्ग एंड आयरन लेडी, अ स्टील लेडी, अ पावरफुल लेडी. राइट? कोई भी कहे कि बहुत जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, जीवन बहुत साकार हो जाएगा, अपने माँ बाप की बात सुनो, हस्बैंड की सती सावित्री बनो, बहुत सारी बातें आएगी. तो बट आप बनने की कोशिश मत करिएगा. बनिए तो कुछ बनिए, सिर्फ आप बावर्ची मत बनिए. तो दैट इज वाई. और बावर्ची बनना भी है तो प्रोफेशनल बावर्ची बनिए, जहां पे आपकी तारीफ. एनीवे, टुडे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हाउ कैन वी स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन? बिकॉज समथिंग विच हैज बीन इम्पोज्ड सिंस चाइल्डहुड, and that is the biggest issue. Many people are there who are scared of solo traveling. When it comes to, okay, go to Kashmir and go to Shimla, go to Kanyakumari, go for solo traveling, go and do the trekking, go to the mountains and climb to the mountains. No sir, I can't do this because I'm so much scared. What will happen with me? It is just a kind of comfort zone. I have explored myself through many solo travels, through many solo journeys, and I have found special things on the journey and in the journey. So the same thing when it comes to actually, America did a research.
and Dale Carnegie, the foundation, and the Harvard University did a research, and it found that 65% or 70% of the Americans are having glossophobia. It means fear of public speaking. They don't have the guts to speak in front of the people. This is what we have to understand. 65 to 70% of the people are having this fear. Why is it so? Because when it comes to come on the stage, you start thinking and assuming a lot of things. What's going to happen with me? My heart has started beating a lot, right? My mind is just getting topsy-turvy. My mind is actually fumbling, jungling, jumbling, jumping, and a lot more come into your life and come into your mind. So the same thing, to remove this, इसको पूरी तरीके से इसको बर्खास्त करने के लिए, निकालने के लिए, so what you have to do, आपको क्या करना होगा? You have to make yourself comfortable in uncomfortable situations, right? First of all, try to speak your heart out. Whatever you have in your mind, believe that you can speak. Believe that yes, it is the best time to speak yourself. Many people and many students I have experienced and I have seen that they assume or they think that, okay, when we complete 1 month, 2 months, 3 months training, we will start speaking. No, that's a wrong assumption. That's a wrong perception, because the fine moment never comes into your life. And that is why what you have to do, you have to start from today and write this moment. Abhi pal hai, ise ji lo, kal ho na ho. So that is why you have to celebrate and embrace today. आज का जो हमारा lesson है, जो chapter है, that is all about public speaking. Dear students, public speaking जैसे आपके माइंड में आती है, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि why this cola very deep, मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए, तो why is it important? क्योंकि 2012 का समय था जब ओबामा ने कहा वी द पीपल ऑफ अमेरिका, तो सब लोगों ने जो है कि बिना कुछ सोचे और समझे ओबामा को वोट दे दिया. उस वक्त जो है कि जब मार्टिन लूथर अमेरिकन लोगों के सामने खड़े हुए और बोले आई हैव अ ड्रीम that one day our America would be free of racism and black and white people, where there would be no discrimination, तब उस वक्त लाखों लोगों ने तालियां बजाई मार्टिन लूथर के लिए. 2014 में जब इलेक्शन पड़ा, मोदी जी आए और बोले भाइयों और बहनों, तो बहुत सारे भारत के वासी उनको वोट दिए और आज वो प्रधानमंत्री हैं. सो इट मींस दैट, कहने का मतलब यह है कि पब्लिक स्पीकिंग मैटर्स बिकॉज व्हेन यू हैव अ गुड मैटर and when you want to be mattered, public speaking matters. Especially everybody has a desire. अभी कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि काश मैं भी ये अब्दुल्ला सर की तरह, अब्दुल्ला भाई की तरह बोल पाता. मतलब काश ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे इतनी चीजें एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हर बातों को सही से रख पा रहे हैं. ना कोई डायरी है, ना कोई किताबें हैं, सिर्फ चल रही है जुबान और चल रहा है दिमाग. काश में भी वहां होता है. ये काश 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 एक दिन आपका सल्फास बन जाता है. सो दैट इज व्हाई डोंट मेक इट अ सल्फास, स्टार्ट इट राइट नाउ, दिस मोमेंट. पब्लिक स्पीकिंग कम्स. So when you talk about this public speaking, first of all, what is this? If we talk about, we have speaking, then we have talks, and then we have communication, and then we have public speaking especially, right? Speaking is all about whenever you speak something, right? You speak anytime, every time something, that is called speaking. But when you talk about talks, like you have conversation and talks with somebody, that's called आदान and प्रदान. कम्युनिकेशन मतलब होता है कि कहते हैं कि बातों को समझना. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो दुनिया में वो है कम्युनिकेशन, राइट? रोते हुए को इंसान हंसा सकता है, सोते हुए को जगा सकता है, उलझे हुए को आसान बना सकता है, और नफरत वाले को मोहब्बत करा सकता है. दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में बड़ी प्यारी सी लाइन कहीं पे लिखी हुई थी, ये अ वाइज पर्सन हियर्स व्हाट इज नॉट बीइंग सेड. बुद्धिमान इंसान वो है जो वो सुन रहा है जो बोला नहीं जा रहा. जब वाइफ आपकी पत्नी कहे कि सर में दर्द है तो कम्बी फ्लाम की गोली मत लाके दो, उसे कश्मीर घुमा दो. खत्म कहानी. दिस इज कॉल्ड दोस्ती, दिस इज कॉल्ड प्यार, दिस इज कॉल्ड मोहब्बत. ये होता है. गुलाब का फूल लाके दे दो, आई लव यू माई जानू, राइट? उस वक्त कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. अब बार बार कोई एक इंसान कह रहा है उसको दर्द है, हेडेक है, हेडेक है, हेडेक है, वो ये नहीं कहना चाहता हेडेक है, वो ये कहना चाहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं कर रहे हो. बस बात को समझिए आप. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. आजकल तुम बहुत बिजी हो, इसका कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे पहले जैसा समय नहीं दे रहे हो. यू अंडरस्टैंड दिस? तो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स, राइट? बच्चा जब आके प्यार से बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच, और वो कभी नहीं बोला रहता, कुछ गलती करके जरूर आया है, इसलिए आज मम्मा को आई लव यू बोल रहा है क्योंकि चप्पल ना पड़े. अंडरस्टैंड इट. दैट इज व्हाई दिस कम्युनिकेशन मैटर्स. नाउ कमिंग टू द पब्लिक स्पीकिंग. सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग पे आते हैं.
621 बीसी में ये शुरू हुआ। ये आपके एंशियंट ग्रीस में, राइट, बीडी और बीसी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर आफ्टर डेथ। ये 621, तो 621 ईस्वी में ये ग्रीस में शुरू हुई, लेकिन उससे 2000 साल पहले ये शुरू हुई थी, लेकिन सही से शुरू नहीं हो पाई थी, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई थी इजिप्टियन के जमाने में, इजिप्ट में पब्लिक स्पीकिंग। ये 621 में इसका थोड़ा बोलबाला हुआ। उसके बाद 1889 में, इन 1889, ये रोम के अंदर, इटली की राजधानी जो है, उसके अंदर ये ज्यादा प्रचलित हो गई पब्लिक स्पीकिंग, राइट। अब इसका इतिहास कहां से है? 2000 साल पहले यहां से इजिप्टियन के जमाने का, लेकिन उस वक्त कोई इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ पब्लिक स्पीकिंग होता है। 621वीं में जो है कि आपका ग्रीस में इंट्रोड्यूस हुई, फिर 1889 में ये मार्केट में आ गई पब्लिक स्पीकिंग, right? So that is why from, since 1889 it actually was introduced and it became little popular. Why? When Aristotle interfered into this. जैसे ही अरस्तु ने इसमें अपना हाथ डाला, इसको बताया, तो ये जाके धीरे धीरे प्रचलित होने लगी, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस पब्लिक स्पीकिंग एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, intervention, connection and network and final explanation. That is why public speaking is used for. उन्होंने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग कुछ पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे कि किसी को अपनी इंफॉर्मेशन देना, किसी को अपनी एजुकेशन देना, किसी को परसुएशन देना, राइट, किसी को इंटरटेनमेंट देना, किसी को डेमोन्स्ट्रेशन देना, किसी को मोटिवेशन देना। These are the purpose of public speaking. Because until and unless आपके पास एक पर्पस नहीं है, that's nothing exactly, right? That is why you have to understand. अब ये आपको जब भी पब्लिक स्पीकिंग आप करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो, कुछ सिखा रहे होते हैं। परसुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये परसुएशन क्या है? परसुएशन का मतलब कंप्लीट कनेक्शन, कंप्लीट कनेक्शन। Whenever you try to actually persuade somebody, especially the politicians do persuasion, right? They come to you, they do your brainwash, they persuade you completely, and after that you say thumbs up. Why? Because they just, trap your mind. They completely do emotional hook. और हम सब उसी को दिल दे बैठते हैं, दिमाग दे बैठते हैं, अपना वक्त दे बैठते हैं, जो हमारे दिल में घुस जाता है, राइट। कहीं ना कहीं कहते हैं कि तुमने दिल में बनाई जगह, तभी मैं हुआ तुम पे फिदा। सो दैट इज वाई इफ यू मेक सम स्पेस इन हार्ट, you actually become fan of someone, or someone becomes fan of you. That is called persuasion. The most important part in public speaking, persuasion, किसी को अपनी तरफ खींच लेना, entertainment, किसी को entertain करना, demonstration, किसी के सामने प्रदर्शन देना, motivation, किसी को प्रेरणा देना, ये सब आपका पर्पस है। और अरिस्टोटल ने 3 शब्द दिए। एक दिया जब उस वक्त 1889 की बात है, कोर्ट रूम, एक होता है डायट्रिक, और एक होता है आपका डेलिब्रेटिव। ये 3 शब्द दिया कि जब आपको जुडिशियल पार्ट पे बात करनी हो, किसी अदालत में बात करनी हो, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है। एडवोकेट को बोलना पड़ता है जज साहब के सामने, तो कोर्ट रूम में आपका इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। डायटिक का मतलब होता है कि जब आप किसी के बारे में कुछ बुरा या कुछ अच्छा बोलें, तो वहां पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस नजर आती है। और डिलिब्रेटिव का मतलब जब आप कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक बात करें, तो आपको वहां पे भी आपको डिलिब्रेटिव या पब्लिक स्पीकिंग की नीड आती है। वैसे अभी बर वक्त में ये तीनों को छोड़कर इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस नजर आ रहे हैं। देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, राइट। आजकल तो पब्लिक स्पीकिंग हर जगह है, किसी के बर्थडे मनाने में भी पब्लिक स्पीकिंग है, अंडरस्टैंड, राइट। बर्थडे मनाया, 2 मिनट की स्पीच किसी ने दे दिया, हाँ, द मोमेंट यू केम इन टू माई लाइफ, दिस एंड दैट, पता क्या चला, उधर से वो रो रहा है, रो रही है, राइट, और पूरा माहौल जो है
खुशी की जगह गम में चला गया। वो स्पीच ही से सब कुछ होता है। शब्द में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे थे। बहुत पावर है कि नहीं पाजी? सो दीज आर द 3 वर्ड्स गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के द्वारा ये 3 शब्द दिए गए, 3 शब्द और दिए गए इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो बहुत मायने रखते हैं और इसका हर पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, कोच और हर इंसान इस्तेमाल करता है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से। इथोस, पैथोस और लोगोस। थोस, पैथोस, लोगोस। Ethos means credentials, the credits which you have for yourself. That's called Vishwas, trust. Pathos is all about emotions, bhavana. Not exactly a girl, exactly your monkey, bhavana, emotions, the way you connect and hook. Logos is all about reasoning, logics. You are never a speaker without a proper logic. You are never a speaker without a proper emotion. You are never a speaker without the credits in the market and for yourself. That is why these 3 words have a great connection to one another, right? इसको भी बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, इसको बोलते हैं इमोशन। अंडरस्टैंड? किसी को समझ जाना। अंडरस्टैंड? अब जब आपकी ऑडियंस खुजलाने लगे सर, वहां बंद भी करना रहता है। अंडरस्टैंड? वहां आपको अपनी बातें रोकनी रहती है। गॉट ऑल दीज वर्ड्स? Okay. See, ethos means credentials. Pathos means actually, emotions. And then logos means reasoning, logic. Right? These 3 words are important. अब ये तीनों वर्ड्स हर जगह चलता है। आप किसी रिश्ते की बात कर लीजिए, वहां क्रेडिट होना, एक विश्वास होना जरूरी है, इमोशन को समझना जरूरी है, थोड़ा लॉजिक होना भी जरूरी है। ज्यादा इमोशनल रहेंगे, रोज पीटेंगे, राइट? दैट इज व्हाई these 3 are very important, right? Interconnected. Got it everyone? You understand? Now, अब सबसे पहले whenever you speak, जब आप बोलते हैं तो आप यहां पे हैं as a speaker, as an orator. After that you have a medium, then there are your listeners. अब इसमें से सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं की होती है। अगर यही गड़बड़ है तो सब कुछ काम खत्म। स्पेशली व्हेनेवर वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो मीडियम और लिसनर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। सबसे पहली बात अंडरस्टैंड, आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं थे जब एडमिशन लिए थे आप, अब आप बन गए, मजबूरी है आपकी, या मजबूरी के साथ साथ आपकी इच्छा है। मतलब आप अब बने हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्या आप आए थे सब लोग एक ही जैसे थे, ऐसे ही सुनने वाले थे जैसे सुन रहे हो? नहीं, बहुत खतरनाक थे आप लोग। यू आर वेरी डेंजरस। द पॉइंट इज दैट कि आप वैसे नहीं थे जैसा मैं चाहता था, लेकिन मैं वैसा बना दिया आपको जैसा मैं चाहता था। सो अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द पावर ऑफ अ स्पीकर। नाउ इन द लिसनर्स आपको अजीबो गरीब लिसनर्स मिलेंगे। जैसे वन इज द लिसनर हु इज अग्रीबल, आपकी बातों से सहमत हो जाएगा। वन इज द लिसनर हु इज हॉस्टाइल, आपकी बातों से जिंदगी में सहमत नहीं होगा, हमेशा अपोज करेगा आपको, राइट? वन इज द लिसनर एनालिटिकल, काफी वो आपको एनालाइज करेगा, सोचेगा, समझेगा। वन इज द इंफॉर्मेटिव लिसनर, जो काफी जो है कि इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगी। वन इज द अनइन्फॉर्म्ड लिसनर, जिसके पास कोई जानकारी नहीं रहेगी, राइट? वन मतलब राइट, गॉट इट? Can anybody be like you? All right, hostile, who is always opposing you, always opposes you. Analytical, काफी एनालाइज करें। इंफॉर्मेटिव, काफी सूचित रहे। अनइन्फॉर्म, किसी को कोई जानकारी ना रहे, कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, बस सनम हम तो जबरदस्ती बैठा दिए गए, जल्दी से गेट खुले भाग लें। ऐसा बहुत बार होता है। नहीं, यहाँ तो आप अपनी मर्जी से आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ, राइट? कोई बुढ़े चचा बोल रहे हैं, अब फंस गए, डोर लॉक है, भागना चाहते हैं, भाग नहीं पा रहे। कोई चाची है जो लेक्चर दे रही है, भागना चाहते हैं, भाग नहीं पा रहे। होता है ऐसा, इट हैपेंस। आफ्टर दैट जो आपका मीडियम है, मीडियम कैन बी एनीथिंग,
ये स्टेज आज मीडियम हो गया, ये हैप्पीनेस मीडियम हो गया, ये कभी वीडियो कॉल मीडियम हो गई, ऑडियो कॉल मीडियम हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। ऑडियो कॉल पे जरा सोचिए, मैं आपको सबसे बहुत एक कॉमन चीज बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट कॉमन थिंग। जब हम किसी से चैट कर रहे होते हैं, कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, एकदम फ्रीली। ये सबका अपना एक्सपीरियंस है। ऑडियो कॉल पे जैसे आते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस घटता है, वीडियो कॉल पे जैसे आते हैं कॉन्फिडेंस और घटता है, सामने जैसे आते हैं कॉन्फिडेंस खत्म। अंडरस्टैंड? हर इंसान, चैट पे बोला हुआ इंसान कुछ भी बोल सकता है, सामने से बुलवा के देखो। आपने कम से कम 10 लोगों को प्रपोज किया होगा चैटिंग पे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किया एक्चुअली, बट चैटिंग पे आप सब लोग के लिए बहुत आसान है कुछ भी कहना, बट सेइंग इन फ्रंट इट्स क्वाइट हार्ड। सो दैट इज व्हाई पब्लिक स्पीकिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस फेस, राइट महक? मिस्टर इरशाद, you go back to Nepal, you make stand everybody in the hall and say Nepali bhalobasho. All right, you have to just speak something mixed in. Got it everybody? So these are the things we have to understand. After that थोड़ा सा फॉर्मूला बता के फिर हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे। उसके बाद आता है आपका SMCR, स्टार्ट, मेन, और उसके बाद जो है कि सॉरी सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। उसके बाद आता है SME, स्टार्ट, मेन, एंड। शुरू करना है, मेन बात पे बात करना है, और एंड कहां पे करना है, यही सारी चीजें हमें पता नहीं होती। बहुत से लोग शुरुआत बहुत जोश में करते हैं, उन्हें पता ही नहीं रुकना कहां है। इट हैपेंस, ऐसा होता है। रुकते रुकते इतनी गलती कर डालेंगे कि पूरा बना बनाया सिस्टम बिगड़ गया। दैट्स बैड, खराब बात। तो दैट्स वाई रुकना कहां है वो पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी धर्म वाले ने किसी दूसरे धर्म वाले में बहुत गहरा प्यार कर लिया और दोनों की फैमिली खतरनाक है, बोथ फैमिलीज आर डेंजरस। अब एकदम गहरा प्यार होगा, काट लेंगे दिल को, नस को काट लेंगे, हाथ तेरी तो। अब वो प्यार अगर हुआ, उसके बाद आपको पता है कि यू आर अनेबल टू मीट ईच अदर और अनेबल टू गेट मैरिड, अब आपके साथ होगा क्या? वो उधर काटेगी नस, आप इधर जो है खाना नहीं खाओगे, प्रॉब्लम होगी। व्हाई इज दिस? बिकॉज आपको एंड उसका पता ही नहीं था, एंड होना कहां है। दैट्स वाई जब भी कुछ शुरू करें एंड उसका पता होना चाहिए। हम तो सनम बस शुरू कर दिए हैं और एंड में खत्म हो गए। दैट इज वाई एंडिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। Got it everyone? Now coming to the point. Now come to this public speaking. स्पेशली यहाँ पे बहुत से लोग 1-1, 2-2 महीने से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट स्पेशली अभी भी उनके अंदर एक चीज दिखाई दे रही है, बीइंग अनकंफर्ट। अजीब से वो अनकंफर्ट हो जाते हैं, हर चीज को करना चाहते हैं बट दे कांट डू, नहीं कर पाते। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज है, हमारे पास भगवान ने 3 माइंड दिया है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। एक बार मैं किसी से बहुत ज्यादा जो है दुखी था, उसका मन कहा कि मैं उसको बहुत पीटूं, बहुत मारूं। रात में यही बात सोच के सो गया, सपने में उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा। क्यों? क्योंकि मेरी बात वो कहां चली गई थी, सबकॉन्शियस। आप 20 महीने की ट्रेनिंग ले लो, आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि मुझे डर लगता है, मैं कमजोर हूं, वो बैठा हुआ है। इसको निकालने में 1 मिनट में निकल सकता है और 20 साल लग सकते हैं। दैट इज वाई द मोस्ट पावरफुल, दिस इज योर मोस्ट पावरफुल प्लेस वेयर यू हैव टू रिमाइंड दैट यू कैन डू दिस। I stood first time on the stage to teach. My legs were like dik chik Nora Fatehi. Right? After that, now you can see that it is just according to me. It's under my control. Same way happens with you. So make it in your subconscious mind. It's all right. Right, mister? Backside you're sitting. Come on. You're writing something. You're writing this. Okay. So where is your subconscious mind? अब आते हैं हम कैसे बोले, एक्चुअली कैसे अपनी बातें रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले अगर आप बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, तो हमारे पास 3 चीजें, इसमें मैंने पिछले क्लास में भी कुछ दिन पहले बताया था।
बॉडी, माइंड, टंग। अब टंग से इंसान क्या करता है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां। समझ रहे हैं आप? समझना इनको वस्त्र तू, अरे लव लेटर थोड़ी ना देना है। जिस तरीके की जो बात है उस तरीके से वो होनी चाहिए। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां। समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले अपने शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। राइट? और ये सभी लोगों के लिए कि चरित्र जब पवित्र हो तो है क्यों ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आप समझ रहे हैं? अब जो आप ऐसे बोल रहे थे, सबसे पहले आपकी बॉडी और माइंड बहुत केस में नहीं दिखती है। आप ऑडियो पे हैं, आपकी कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आपकी आवाज कहीं सुन रहा है, राइट? या कुछ भी आपने बोला, फोन पे बोल दिया, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टंग। और आपकी टंग कैसी है? चिली, मिर्ची है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब वही वाली बात होगी, आपकी टंग या तो मिर्ची है, या तो ज्यादा ही नमकीन है, या ज्यादा शुगर है। इट्स नॉट मिक्स्ड, राइट? अब आप क्या है कि किसी की साउंड है, वो आराम से ऐसे बोल, तो खुद की खोज में निकल, वो ऐसे ही बोलता जा रहा है। और कुछ लोग एकदम से हार्ड है, जैसे आई लव मोहित साउंड, quite heavy, quite weightful. So especially you need to work upon your vocal card. अब जब आप बोलते हो तो आपकी टंग पे काम करने के लिए सबसे पहले आपका एक लिप, होठ, आपका वोकल, उसके बाद आपका जो है कि चेस्ट, फिर उसके बाद आपका आता है स्टमक। और मेरे ख्याल से खुशी अगर सीख रही है सिंगिंग तो उनको इसका टेक्निकल वर्ड भी पता होंगे, सिंगिंग में जो म्यूजिकल वर्ड्स में बोलते हैं। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूं जो आसानी से आप समझ। लिप, जितनी बातें आपको जब नॉर्मल कहनी रहे तो आप अपने होठों का इस्तेमाल करें। या इट्स ऑल राइट, राइट, आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट, इट्स फाइन, आई कैन डू दिस। जब आपको बातें थोड़ा सा गहरी करनी हो तो आपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करें। या आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट्स ऑल राइट टू बी नॉट राइट, समटाइम्स इट हैपेंस। रिश्ते में तो हम आपके टीचर लगते हैं। Chest, you have to just go deeper and you have to say heavily, yes, I told you that. It's all right to not be right and it's okay to not be okay in your life. थोड़ा और गहरा करना है तो आप स्टमक पे डायरेक्ट पूरा प्रेशर, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में जाती है। अंडरस्टैंड? पूरा गहराई से लेके आता है। It's all right to not be right. It's okay to not be okay in your life. Ladies and gentlemen, this is the moment that is stopping you, but you never stop in your life. Just break the barriers and all the barricadings and just see the world is lying under your cap and the world is just, waiting for appreciating you. So break all the barriers, move, march and see the world. The world is under your control. Play with your tongue. और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप स्टाइल मारो या आप ऐसे बोलो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब करने के बाद इतना गजब का कॉन्फिडेंस आता है। आपकी जुबान के कॉन्फिडेंस को दुनिया का कोई कोना नहीं जो रोक पाए आपको। इट्स माई प्रॉमिस। ये सारी चीज करने से जो मैं बता रहा हूं, आपको कोई भी कॉन्फिडेंस लेस नहीं कह सकता कभी भी। जाओ कहीं, हमें जरा कोई हरा के बताए स्पीकिंग में, नहीं, बात ये नहीं कह रहा हूं, बात ये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि कहां पे क्या बोलना है। आपको भी वो चीज होनी चाहिए और आपको ये चारों चीज का हर बार अपने आप में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो। राइट एवरीवन? और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसके, विल डू द प्रैक्टिस ताकि रिलैक्स रहें। उसके बाद आफ्टर दैट, अब देखिए टंग पे बहुत काम करने की जरूरत है। कभी भी आप फ्लैट टंग यूज ना करें प्लीज। फ्लैट टंग कभी भी ना यूज करें।
अनजाने हो जो तुम, बेगाने हो जो तुम, पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए। अब ये फ्लैट टोन है। अनजाने हो जो तुम, बेगाने हो जो तुम, पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों। ये फ्लैट टोन नहीं है, ये टोन है वेरिएशन टोन। समझ रहे हैं आप? वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है, हर बात में वेरिएशन लाइए। और वेरिएशन लाने के लिए आपको पिच, आपको बेस, आपको टोनालिटी, आपको टेम्पो, ये रोड वाला नहीं, आपको टेम्पो, आपको ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। जो आपका फ्लक्चुएशन है, जो आपका मॉड्यूलेशन है, राइट, जो आपका एनंसिएशन है, राइट, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, ये सारी चीजें आपको अपने टोन को वेरी करने में मदद करेगा। राइट एवरीबॉडी, हाउ आर यू? How are you? Change the word. Change the word. Great. How are you? Change the word. I will ask you 10 times. You change the word. You also can say bad, good, whatever you want to say. How are you? I am. How are you? How are you? How are you doing? Okay, how is your life going? How is your life going? My life is going bad. Bad? अच्छा पलक, आप कौन सी लाइफ की बात कर रहे हैं वो भी जरूरी है, राइट? ठीक है, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ खुद की लाइफ नहीं रहेगी, कोई और लाइफ बन गया है, राइट? इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस नाउ? I'm more confident. Speak it. Over the moon. That's nice. Really. जितने लोग बोलेंगे उतने लोग स्टेज पे बोलेंगे, right? So how is your emotion now? Is it under control or out of control? Under control. Okay, that's great. So how is your family going? आपका जवाब उस लेवल पे नहीं आ रहा है जिसको मैंने टंग को बताया कि उस हिसाब से बोलना है। How is your life going, everybody? आपके बोलने के हिसाब से लगता है हॉस्पिटल में एडमिट, राइट? How is your life going? How is your family going? How are you actually? So, all right, that's great. How is your friend circle and friendship going? My friends Not good? Oh my God. What about you, Sanjay? it's off road, I think. It's off route. Yes. You have left your friends. Yes, I don't make friends. You don't make friends? Yes, neither. Be my friend. Yes, God bless. always. All right. That's nice. Okay. Yeah. What about your friends? It is going good. It's going good. How many friends do you have? 3-4 best friends. 3-4 best friends. And what about rest friends? They are normal friends. They are normal friends. Okay. That's fine. आप लोग फिर से नहीं बोल रहे हैं, अभी मैं आपको बुलवाता हूं, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चल कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो उस पर आप थोड़ा सा गहरापन ला दीजिए। आई लव माई मदर, राइट? आई लव माई मदर। समझ गया? अरे यार, हाँ, आई लव यू। आप समझ लो होगा क्या, you know what will happen actually, you have to just find that emotion. So everybody, do you love your mother? Yes, I love my mother. Who is the most important word? Which is the most important word here? Mother. So what will you do? You will stress your mother, right? And you will say, I love my mother. Do you love your father? Yes. Do you love yourself? Yes. Do you love your skills? Yes. Do you have confidence? Yes. Do you want to build your confidence? Yes. Do you think that one day you will be a millionaire? Do you think that one day the world will clap for you? Okay, do you think that you will succeed? तो मेन इंपॉर्टेंट आपका वर्ड आएगा, जैसे कुछ भी आए, यार आपने 1 करोड़ की लॉटरी लग गई,
अब 1 करोड़ की लॉटरी क्या ऐसी नॉर्मली लगी? नहीं ना. You got 1 crore rupees lottery. Is it? No, you have to just use different. Hey, Rajesh, listen, man. You got 1 crore lottery. Right? Oh, right. Hey, Rajesh, you got 1 crore lottery, man. अमिताभ बच्चन जब 7 करोड़ वाला बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? Exactly. 7 करोड़. अब आप लोगों को 7 करोड़, राइट? ऐसा लगेगा 7 करोड़ नहीं, 7 रुपए दे रहे कटोरे में. ओके, सो प्लीज माइंड इट. आफ्टर दैट वी हैव बॉडी. माइंड का तो खैर आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, मतलब करते हैं. ओके, बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कुछ दिन पहले 38%, 55% और 7%. बहुत बड़ा फॉर्मूला है. 55% आपकी बॉडी बोलती है, 38% आपकी जुबान बोलती है, मतलब आपका टोन बोलता है, और उसके बाद 7% आपके शब्द बोलते हैं. तो शब्द सिर्फ 7%, राइट? तो बॉडी इज अ 55%. जब भी कुछ बोले, आई एम फाइन कहना है तो बॉडी के साथ कहें. कुछ लोग आई एम फाइन भाई, अच्छा नेगेटिव वाइब आती है कि नहीं आती है? ओके, एवरीबॉडी लाफ्टर. नहीं हंस पा रहे. हंस लेंगे. फेक, चलो फेक को देखते हैं कौन कन्वर्ट कर पाता है ओरिजिनल में, ओरिजिनलिटी में. Understand it? So body is all about confiscated body, not allowed. Open body, right? This one you need. It's required, right? So everybody, how are you? Right? How are you? How is your life going? Are you excited? Still some people are like this, I'm excited, right? Okay, are you excited? Khushi is saying, so are you excited? Are you nervous? Are you confident? That's great. We need an open body language. So are you confident? Are you nervous?